The email I will share with you is a very important email because many times you feel like this is only going to be you who is in this particular situation. बस इस सिचुएशन में मैं अकेला हूँ और कोई भी इस सिचुएशन में नहीं होगा। और इसलिए ऐसा क्या लगता है कि यार उसको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कस करने का या फिर ईमेल लिखने का और जो है किसी से पूछने का कि इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। अभी हमारे घर में रेनोवेशन चल रही है तो इसलिए अलीना के नाना नहीं यहाँ पे हैं और वो मतलब थोड़ा इधर उधर हाथ बटा रहे हैं। देखो इस बार मेरे पास जो ईमेल आया है, दिस इज फ्रॉम मेहुल एंड ही सेज हाय भारत, आई रेड ऑल योर ईमेल्स एंड इट इंस्पायर्स मी द मोर, बट द मेन प्रॉब्लम आई एम फेसिंग अबाउट द स्टडीज that I've completed only 12 years of education in India in 2013, and after that I studied mechanical engineering for only 3 semesters and dropped out the studies. So right now I'm just 12th passed student having 51.84% with 11 years of educational gap. Before a few months, one of my friends went to Canada for his higher education and he motivated me to take step towards my further education in Canada. And on behalf, I had given the IELTS in January and I got 6 bands overall. Then I tried to get a consultant for Canada, but for now, all of the consultants I've met all are saying that none of the countries will allow you to study as an international student with 11 years of educational gap. Now I'm more depressed about this, but after reading your mails, I'm getting inspired, but don't know whether the universities in Germany will accept my education gap after 12th. Is there any possibility for me to study in Germany? I'm facing so much problems, like I'm 28 years old and I don't have a degree and I'm not getting proper jobs in India on basic education. My parents also hate me, saying that you have spoiled your life and now you can't do anything and can't achieve anything in life, just do the labor work over here. These words from my own parents hurt me more. So in this regard, please help me. If there's any chance, I'll get surely from you that I can study and get PR in Germany with this profile, then I want your support and guidance. Now, this is a very difficult situation to be inside. नहीं होता क्या है कि हमेशा ऐसा लगता है यार ठीक है, मतलब कम से कम पेरेंट्स तो सपोर्ट कर रहे होंगे, पर देखो मेहुल ऐसा तो होगा, अब तुमने ऐसा तो बोल दिया कि ठीक है यार मतलब मम्मी पापा जो है साथ नहीं दे रहे, पर कुछ ना कुछ तो और स्टोरीज होंगी उसके पीछे, मतलब 11 साल के पीछे कुछ ना कुछ तो स्टोरी होंगी कि मतलब वो भी ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार दोनों साइड की सिचुएशन होगी एंड दिस इज नॉट रियली नॉर्मल दैट यू हैव सच अ बिग गैप, ठीक है। The second situation could be that you don't really have a gap, you were doing something. It's very important to differentiate between these two things. बहुत लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सीधा यार नहीं 11 साल का गैप है मेरा। अरे यार 11 साल का गैप कैसे हो सकता है, मतलब 11 साल अगर घर में बैठ के बस मतलब बिस्तर तोड़ रहे थे तब तो मैं समझ आता है कि ठीक है 11 साल का गैप है, पर अगर तुम 11 साल बिस्तर नहीं तोड़ रहे थे और जो है कुछ ना कुछ काम कर रहे थे बाहर, मम्मी पापा के बिजनेस में हेल्प कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, then this is not a gap. This is just you getting your work experience done. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब बहुत ज़रूरी चीज़, अगर तुम अनाबिन की वेबसाइट पे जाओगे, अनाबिन की वेबसाइट में जाके यहाँ पे जाएंगे हम शूल आब्सलिसिमित होकशूल सुगांग, मतलब कौन कौन सी स्कूल तुम्हारी एग्जामिनेशंस रिकग्नाइज हैं जिसके बाद तुम डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर मतलब कुछ एडिशन के साथ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हो। अब इसमें देखो इंडिया का लिखा हुआ है कि Sekundarschulabschlusszeugnis nach 12. Klasse. Nach 12. Klassen. And now look at this, very important. कि क्या लिखा हुआ है कि Zertifikat bzw. Bescheinigung der akademische Prüfstelle, so APS is necessary anyway, so like you have to show the 12th in together with the APS, right? And then there's a second thing. Here they're also writing that कि sofern im Sekundarabschlusszeugnis eine Gesamtnote von mindestens 50% der maximalen Note nachgewiesen ist. So you have to get like 50% score minimum. Now the good thing in this situation is कि मेल तुम्हारे पास 50% है, ठीक है, 51.84% तुमने बोला है, तो that is not a problem at all. तो ऐसा मत सोचना कि यार तुम अब जो है इसके बाद कभी जर्मनी में पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम पढ़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास 50% से ऊपर है। बाकी बात आई एजुकेशन गैप की, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ें तो कुछ यही है कि भाई तुम्हें लग रहा है कि एजुकेशन गैप में दिक्कत है, इस चीज़ की दिक्कत है, इस चीज़ की दिक्कत है, यार एजुकेशन गैप जर्मनी में इस हिसाब से नहीं मांगते। बहुत बार ऐसा होता है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास जब मैं THH में मास्टर्स कर रहा था, हमारे पास हमारे साथ में एक स्टूडेंट था जो 36 साल का था, 36 साल का था, और उसने जो है अपनी जॉब वगैरह करने के बाद, एजुकेशन मतलब जो है नॉर्मल जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसका करने के बाद उसने डिसाइड किया कि यार अब जो है मतलब मैंने बैचलर्स करनी है और उसके बाद जो है मेरे को मास्टर्स करनी है। 36 साल की उम्र में, 36 साल के थोड़े हो तुम,
तो अगर तुम 36 साल के होगे भी तो यार मतलब ऐसा मत सोचना कि जिंदगी खत्म हो गई अब और किसी भी चीज का करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये चीज तुम्हें तभी सोचनी चाहिए जब तुम बिस्तर पे लगे हुए हो और तुम 60 70 80 साल की उम्र में मरने को हो रहे हो बिल्कुल, और जो है बिस्तर पे बैठे हो और लगता है कि यार ठीक है मतलब अब जिंदगी में कुछ सेंस नहीं है, सारी जिंदगी खत्म हो गई और अब हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, आंखें चल रही है, जुबान चल रही है, तो कुछ ना कुछ करो। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि मतलब जिंदगी खत्म होगी और जो है मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें मेन रेगुलेशन मैंने ऑलरेडी दिखा दी कि 50% चाहिए तुम्हारे स्कूल में। और मतलब ऐसा भी होता है कई लोग 50% से नीचे भी पढ़ पाते हैं, पर वो ऐसा होता है कि ठीक है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन भेजी, जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है। तो इसके बाद भी क्या होगा कि यार अगर तुमने 3 सेमेस्टर भी पढ़े हैं, तुम्हारे पास अगर पहले 2 सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट है तो तुम डायरेक्टली बैचलर्स पढ़ने आ सकते हो जर्मनी। ठीक है, पर तुम्हें ट्रांसक्रिप्ट निकालनी पड़ेगी, ये दूसरी चीज़ है। ट्रांसक्रिप्ट निकाल ली तो उसके बाद क्या होगा, बस बैचलर्स के लिए एप्लीकेशन होगी और जर्मन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमने जर्मन सीख ली तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। अब 50% के बाद, और मेरे ख्याल से अब फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है कि ज़्यादा बढ़िया ग्रेड्स ना आए हो, और अगर तुम ये सोचोगे कि यार इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलेगा, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, नहीं मिलेगा। तो उसके बाद क्या ओपन रखना है कि ठीक है मुझे जो है अब अगले 3 या 4 या 5 महीने निकालने, 3 महीने लगा लो। ठीक है, 3 महीने में अगर तुमने B1 कर ली तो B2 तो करोगे ही करोगे, क्योंकि B1 तक पहुंच गए तो यार B2 मतलब यूं हो गया कि ठीक है यार एक लेवल और बढ़ा के अगर मैं अब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता हूँ बहुत बढ़िया है। पर अदरवाइज मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि यहाँ पे आनाबिन की वेबसाइट पे उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि यार ठीक है 50% होने चाहिए, देन इट इज़ परफेक्टली फाइन। और सुनो, कई 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 जगह मतलब लिखा हुआ है कि देर आर नो मिनिमम एग्जाम्स, देर आर नो मिनिमम ग्रेड्स नेसेसरी। अब ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग मतलब वो है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। IND BV01, ठीक है लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है IND BV02, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई मिनिमम नोट कोई मिनिमम जो है ग्रेड जरूरी नहीं है। पर ये किस चीज़ के लिए है, किस लोगों के लिए है, जिन्होंने जेई क्लियर कर रखा है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना कि मतलब कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि देखो जर्मनी की मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है कि ये जो बीच वाला जो कंसल्टेंट वाला जो नकली काम होता है ना, वो नहीं होता बीच में। मतलब हमेशा बहुत प्यार तरीके से तुम डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो यार कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ख़राब है, कौन सी चीज़ मतलब निकालनी है, कौन सी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, वो सब कुछ। तो इस सब में मिडल मैन एक तरीके से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, वो तुम्हारा मतलब चॉइस है कि तुम कंफर्टेबल फील करते हो, तुम्हें लगता है ठीक है यार मतलब मैं एक बार ही अप्लाई करूंगा, हर बार तो अप्लाई नहीं करूंगा, तो इसलिए जो है मेरे को कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, वो सब कुछ दूसरी चीज़ है। और वो भी वहां से उठाओ जो लोग इन सारी चीज़ों के थ्रू ऑलरेडी जा चुके हैं। ऐसा ना हो कि यार मतलब कोई आदमी इंडिया में बैठा है और उसने जो है मतलब कभी कुछ किया नहीं, कुछ जो है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला आदमी मिल जाए तो वो तो बहुत बढ़िया है। तो इस सारी चीज़ों का देखना। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने बता दी 12वीं की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने बता दी 11 साल का तुम्हारा हो, मैं मान ही नहीं सकता कि भाई प्रॉपर जो है गैप है, कुछ ना कुछ तो तुमने किया होगा, कुछ ना कुछ किया है तो हम उसको CV में लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि 28 साल की उम्र जर्मनी में एज सच कोई वो नहीं है कि तुम्हारी एक मिनिमम जो है या मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है कि यार अभी 28 साल के बाद तुम जर्मनी में पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे यार लोग 36 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अपनी सारी की सारी डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। और दूसरी उससे अगली बात क्या है, मतलब पेरेंट्स वाली। देखो अब कोई ना कोई रीज़न होगा कि जिसकी वजह से तुम्हें भी बुरा लग रहा है कि यार ठीक है मतलब पेरेंट्स ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं और जो है मतलब सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, पर यार अब किसी ने कोई ना कोई रीज़न होगा, या तो तुम मेरे को थोड़ा रीज़न बताते आगे ताकि मैं समझ पाता क्या चीज़ हुआ क्या नहीं हुआ। पर देखो पेरेंट्स भी ना बहुत बार, बहुत कुछ पेरेंट्स होते हैं जो मतलब वो खुश नहीं होते, मतलब कि तुम बाहर कैसे जा रहे हो, हमें छोड़ के बाहर कैसे जा रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह रहे हो, तुम जो है बीवी जो है ब्याह करो और जो है फिर बीवी को बोलो कि भाई वो हमारे साथ रहे और हमारे पैर दबाए और हमारे लिए खाना बनाए, ये सारे के सारे काम। मतलब एक होते हैं पेरेंट्स उस टाइप की कैटेगरी के। दूसरे पेरेंट्स होते हैं वो जनरली मतलब तुम्हारा भला चाहते हैं और बोलते हैं कि यार तुमने जो सारी की सारी मतलब अभी बकचोदी करी है ये क्यों करी है, मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर सकते थे ना ज़िंदगी में। तो इस डायरेक्शन में जाने का क्या फ़ायदा था, इस डायरेक्शन में जाके तुमने अपनी जो है ज़िंदगी की ऐसी तैसी करा दी। वो दूसरे टाइप के पेरेंट्स होते हैं जो तुम्हें चाहते हैं कि यार तुमने जो है इस टाइम तक गलत डिसीजंस लिए हैं पर अब तो कुछ करो। तो बहुत बार यार मैं मतलब पॉजिटिव सोचने जाता हूँ कि ठीक है मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो मतलब तुम्हें पुश करना चाह रहे हैं और तुम्हें जो है बस एक डायरेक्शन देखनी है, तुम्हें बस ये बोलना है कि मैंने ये और ये रिसर्च कर ली है और मुझे पता है कैसे कैसे आगे जाना है और इसमें जो है मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आई एम गोइंग टू फिगर समथिंग आउट विद सम काइंड ऑफ रिसर्च।
ठीक है। इसीलिए तो मतलब हमने ये सारी की सारी फ्री पीडीएफ्स वगैरह, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिखी होती है हर एक वीडियो में, वो सारी की सारी यही होती है कि कुछ कुछ कंटेंट ऐसा होता है या फिर कुछ कुछ पीडीएफ्स ऐसी होती है विच आर गोइंग टू बी मोर रेलेवेंट टू यू। ठीक है, तो तुमने जो है डायरेक्टली क्लिक किया और देखा कि भाई ठीक है मेरे को स्टडी वाली पीडीएफ पढ़नी है, तो स्टडी वाली पीडीएफ पढ़ के तुमने जो है सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई। अब तुम्हारे केस में स्टडी वाली पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लेना, और जो है तुम्हारा जो फास्टर जर्मन फ्रेमवर्क है, जो फ्री कोर्स है, उसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें अगर तुम जर्मन सीखने में डर लगता है, ठीक है, तो कम से कम ये समझ आ जाएगा कि जर्मन किस टाइप की भाषा है, कितना टाइम लगता है, किस टाइप से भाषा सीखते हैं। तो वो दोनों चीज़ें तुम्हें एक तरीके से बढ़िया से आइडिया दे देंगी, एंड दे आर गोइंग टू पुट यू वन स्टेप फॉरवर्ड इन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रोसेस। जो लोगों को मतलब मजाक लग रही है चीज़, दिस कैन बी एक्चुअली वेरी वेरी मतलब टॉर्चरस। तो ये जो है मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया चीज़ नहीं है ये। तो इसलिए मतलब सही में सीरियसली कोशिश करो कि यार तुम कुछ ना कुछ करो। और पीआर वगैरह तो क्या सिस्टम है, बर्लिन की वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं वेबसाइट दिखा ही रहा हूँ यहाँ पे। यह है बर्लिन की वेबसाइट, और ये जनरली सारे के सारे मतलब स्टेट्स के लिए सिमिलर मतलब रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर तुमने 4 साल का रेजिडेंस परमिट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट का, तो तुम परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, परमानेंट सेटलमेंट परमिट फॉर क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर्स, इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं, क्लॉज, इन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम टाइम इज रिड्यूस टू 2 years इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड वोकेशनल ट्रेनिंग और अ डिग्री इन जर्मनी। ठीक है, मतलब तुम्हें 4 साल काम नहीं करना, तुम्हें सिर्फ 2 साल काम करना है। 2 साल काम करने के बाद तुम्हें जो है परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। और अभी जो नया लॉ पास हुआ है, जिसके बाद जो तुम 3 साल के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें 3 साल काम करना है। मतलब 2 साल के बाद तुमने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया, और उसके 1 साल बाद तुम सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर देन यू आर कंप्लीटली फ्री, देन यू कैन गो वर्क इन वट एवर कंट्री यू वांट। मतलब तब जो है चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और उसके साथ क्या चाहिए, B1 लेवल तो चाहिए ही चाहिए। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी B1 लेवल जर्मन चाहिए, चाहे तुम स्टडीज़ करो जर्मनी में, चाहे ना करो, चाहे जो मर्जी करो, तो B1 तो चाहिए ही चाहिए। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। B1 के लिए भी मतलब कोर्सेज वगैरह हैं हमारे पास बिग अकेडमी पे, पर मैं बोला कि यार अगर तुमने अभी इन्वेस्ट नहीं करना, तो कम से कम जाके एक बार फ्री चीज़ों में पढ़ो तो सही, थोड़ा टाइम तो लगाओ। अगर पैसा नहीं लगाना तो टाइम लगाना पड़ेगा, पर टाइम लगाओ तो सही। टाइम लगा के पता चलेगा कि ठीक है यार, दिस इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन, दिस इज समथिंग आई वांट टू गो फॉरवर्ड इन। मैं नहीं चाहता कि यार तुम लोग मतलब ऐसे बिल्कुल पागलों की तरह कहीं भी जाओ और बोलो कि ठीक है यार मैं तो जो है पैसा लगाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, भाड़ में जाए, मतलब पैसा मेरा कहाँ पे जाए कहाँ पे ना जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, सीधा कंसल्टेंट पे जाएंगे, 2.5 लाख रुपए देंगे और बोले अरे यार कंसल्टेंट ने तो लूट लिया। तो इससे बढ़िया क्या करो यार, कुछ मतलब अपना जो है सारे के सारे जो फ्री कोर्सेज तुम्हारे लिए बनाए हुए हैं वो देखो एक बार बैठ के, और उसके बाद जो है तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया किस तरीके से आगे जाना है। क्योंकि देखो, आदमी के गोल्स होते हैं लाइफ में, ठीक है। मैं जब मतलब 16 साल का था, तब मैंने लिखा होता कि यार ठीक है 20 साल तक ये करना है, 25 साल तक ये करना है, 30 साल तक ये करना है, 40 साल तक ये करना है, ऐसे करके। अब खैर मेरे सिचुएशन में तो ऐसा है कि जो मैंने गोल्स मतलब 16 की उम्र में लिखे थे, अभी अपने लिए 29 की उम्र का हूँ मैं अभी। तो 29 की उम्र में मतलब ठीक है, आई रीच मोस्ट ऑफ दोज गोल्स। पर यूं होता है कि यार हर एक आदमी के फिर मतलब गोल्स थोड़े चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो उसको रीच करने के लिए हमेशा पुश करना पड़ता है। और पुश करने के लिए भी नहीं यार, मतलब सराउंडिंग्स बहुत जरूरी है। देखो एक और चीज बोलना चाहता हूं मैं वीडियो खत्म करने से पहले, यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए तो बहुत बोलते हैं कि यार ये जो है पौधा इस टेम्परेचर में नहीं उगता, ये इस टेम्परेचर में उगता है, ये इतनी ह्यूमिडिटी में नहीं उगता, ये इतनी ह्यूमिडिटी में उगता है, ये जो है इतनी सर्दी में नहीं उगता, ये इतनी सर्दी में उगता है। तो एक बात सोच के देखो यार, अगर मतलब एनवायरमेंट का, सराउंडिंग्स का, चीजों के उगने में या मरने में इतना ज्यादा रोल प्ले करता है, तो हम आदमियों को कैसे भूल जाते हैं कि अगर तुम्हें सही सराउंडिंग नहीं मिली, तुम्हें सही एनवायरमेंट नहीं मिला, तुम्हें सही सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, तो ऐसा हो सकता है यार मतलब जहां पे तुम बहुत बढ़िया तरीके से फ्लरिश कर सकते थे, वो तुम फ्लरिश कर ही नहीं पाए बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें सराउंडिंग बढ़िया नहीं मिली। तो इसलिए सराउंडिंग्स ढूंढना कि मतलब कहाँ पे जाके मैं लोगों से बात करूं, किन लोगों से मैं जो है सारी की सारी अपनी दिक्कतें शेयर करूं। क्योंकि यार दिक्कत शेयर करने से क्या होता है, कोई ना कोई भले आदमी होते हैं जो तुम्हें कोई ना कोई बढ़िया सोल्यूशन दे देंगे। तो हमारा फेसबुक ग्रुप है फ्री एकदम, उसको ज्वाइन करो। इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब ये तो थोड़ा हाथ पैर मारना स्टार्ट करोगे ना, तो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि सराउंडिंग, अगर एक पौधा मर जाएगा और जी जाएगा इसके बेसिस पे कि उसको सराउंडिंग कैसे मिली है, तो एक आदमी का करियर भी, एक आदमी की इच्छाएं, सपने, वो भी मरते हैं और जीते हैं इसके बेसिस पे कि सराउंडिंग कैसे मिली है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, और इस वीडियो को किसी और को भेजना जिसको देखने की जरूरत हो, ठीक है। कुछ भी सवाल वगैरह होंगे डायरेक्टली कमेंट्स में लिखना, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।